Honorable Cabinet Minister and the Chairman, Tourism Himachal Pradesh, Shri R.S. Baliji, all the respected media persons, my distinguished faculty members, nursing staff, and all other distinguished people. We are very lucky and we are very thankful, and it is really honor and privilege for this institution that Honorable Minister has spared his valuable time to be with us at this occasion when our college has achieved one of the greatest milestones, that is renal transplant. And the always helping attitude of Honorable Minister, it always reminds me the work that had already been done by his Honorable Father, Shri G.S. Baliji, who is in real sense always remembered as Vikas Purush of Himachal Pradesh. So whenever we were planning for this, we had a team, and the team members for this renal transplant, you will be very happy to know that the renal transplant surgeon, he is old student of our college. And he joined his MBBS, Dr. Amit, he has joined his MBBS in 2006, and after doing his MS in surgery, then MCH in renal transplant, he has joined here. And for the last 3 months, Honorable Minister, he was always encouraging us that we should go for it when we have got the trained personnel with us. So this is a teamwork, and the department in nephrology, that is being headed by Dr. Rana, Abhinav Rana, and other team members. We got support from surgery department, urology department, because renal transplant cannot be done by a single person. It is always a teamwork. And you will be happy to know that the team has conducted 2 renal transplants in a day. They started their work at 8 a.m. in the morning. Obviously, the preparation was going on for the last many days. And the operation that continued till 8 p.m. And our nursing staff, they also gave us very good support. We had some issues initially, some teething problem as far as operation theatres they are concerned. So anesthesia people, Dr. Shali Rana and her team, then Dr. Sanjeev Sharma, HOD surgery, they all supported in this endeavor. And I am really very, very thankful to all my colleagues, all my nursing staff, and the renal transplant team. We got support from PGI, Chandigarh, HOD Dr. Ashish. He also was there. But the surgery that was performed by our team, and they were just sort of observers and supporting sort of thing for us. So that is all for today from my part. And again, I thank you, all the media persons and all my staff members for this great achievement. Thank you. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और ख़ासकर क्योंकि प्रेस वार्ता है, मैं सारे प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने टांडा की इस फैसिलिटी को हमेशा अपना प्यार दिया है और हमेशा टांडा आगे बढ़े, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज प्रदेश की सेवा कर पाए और यहाँ के रीजन की, जो चाहे कांगड़ा लोकसभा है, चाहे कांगड़ा ज़िला है, चाहे चंबा ज़िला है, चाहे हमीरपुर है, चाहे साथ के लगते जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, उन सब की सेवा टांडा भरपूर कर पाए, हर तरह से कर पाए, उसके लिए आप लोगों का भी साथ हमेशा मिला है।
मैं यहाँ के जितना स्टाफ है टांडा का, जितनी फैकल्टी है, और ख़ासकर यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप, जिन्होंने जब से आए तब से रात दिन एक किया और इस टांडा को किस तरह सुधारा जाए, क्योंकि जब एक मेडिकल कॉलेज होता है उसके अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं और हज़ारों लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। फैसिलिटी इतनी बड़ी है और इतनी विशाल है और सेवा समर्पण इतना बड़ा है, इतने लोगों की ये सेवा कर रहा है कि आप बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको सुधारने की गुंजाइश रहती है। और उस चरण को ले जाते हुए जितना भी यहाँ पे कर्मचारी है, जितना भी स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी यहाँ पे छोटे से छोटे इवन जीडीए वर्कर हैं, हर आदमी यहाँ पे निरंतर एक ही भाव के साथ काम करता है कि हमें सेवा करनी है। ये इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, इसकी नींव रखने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना खून पसीना दिया है। और आज मैं उन सभी लोगों को, डॉक्टर मिलाप को, MS साहब को, अवनिंदर जी को और अभिनव जी को और हमारे टांडा के जो स्टूडेंट हैं अमित जी, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से आज एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। माइलस्टोन ऐसा कि नेफ्रो की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। किडनी के रोग से, गुर्दे के रोग से लोग बहुत सारे परेशान हैं। डायलिसिस के यूनिट जो हैं वो भरे हुए हैं। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, वेटिंग है। और मुझे लगता है कि इस रोग के लिए लोग, क्योंकि ये कोई बहुत कम पैसे में ठीक होने वाला रोग नहीं है, इसमें लोगों की माली हालत ख़राब हो जाती है। इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव डिजीज़, बिकॉज लोग जब अपना इलाज करवाने जाते हैं, जब वो अपने लिए सिर्फ उसको जब प्रिपेयर भी हो रहे होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन के लिए जब किडनी ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन होती है, उसी में लाखों लाखों रुपया खर्च हो जाता है। आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं। टेस्टों को आपको, जिसने डोनर ने किडनी देनी है और जिसने लेनी है, उन दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप एक होना होता है। उसके बाद उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। उस टेस्टों को कराने के लिए आपको बार बार अलग अलग जगह जाना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जब उसको प्रिपेयर करना होता है मरीज़ को, उसके लिए अनेकों टेस्ट होते हैं। और बाद में जब ट्रांसप्लांट होता है, प्री ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट, आपका बहुत सा काम होता है। प्री ये बहुत ही बड़ी जारी बारीकी से सर्जरी की जाती है और ऐसी एडवांस सर्जरी का माइलस्टोन आज राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ने अचीव किया है। मैं राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन्होंने रात दिन एक किया, MS साहब, और नेफ्रो की खासकर टीम, डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर अमित, आप लोगों को, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और इवन जो बाकी डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर धीरज को भी मैं देख पा रहा हूँ, आप भी यहाँ बैठे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। इसमें मेरा रोल तो सिर्फ इतना था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा रोल सिर्फ इतना था कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़े मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक ऐसा आदमी जिसको पैसे, जो लाखों रुपया नहीं कर सकता, उसको अपनी जगह पे कांगड़ा में ट्रांसप्लांट मिल रहा है। और आज 2 ट्रांसप्लांट पिछले 6-7 दिन से होके मरीज़ यहाँ पे दोनों के दोनों एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तालियों के साथ इस टीम का भी इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। एक नया माइलस्टोन है जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ने अचीव किया है। और चाहे पैसा हो, चाहे परेशानी, जब आप बाहर जाते हो आपको कमरा लेना पड़ता है, बाहर की जगह बाहर की होती है। आप चंडीगढ़ जाओगे, दिल्ली जाओगे, वहाँ जाके बस में जाना पड़ता है, गाड़ी में जाना पड़ता है, गाड़ियाँ पार्क करो, फिर उसको लेके आओ, होटल लो, होटल के बाद किसी जगह जाओ। अपनी जगह में इतना बड़ा इलाज और इतनी एडवांस सर्जरी होना, ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है।
मैं आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और साथ में कामना करता हूं कि ये जो सर्जरीज हैं ये बढ़े, आप लोग यहीं पे लोगों का इलाज करें। पोस्ट केयर बहुत अच्छी हो। पोस्ट केयर जो होती है सर्जरी की, उसमें बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज के कारण आप इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे होते हो, और जब इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे आप होंगे तो बहुत सारी आपको इन्फेक्शन से बचाना पड़ेगा। तो आपके जो ओटीज़ हैं, चाहे आपके जो पोस्ट केयर है, उसमें इन्फेक्शन का कंट्रोल हो, ऐसी मैं कामना प्रिंसिपल साहब से और बाकियों से करता हूं। और आप लोग बेहतर काम करें, आप अपने और माइलस्टोन्स अचीव करें। हमारा रोल सिर्फ आपके साथ खड़ा होना है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक दिन की मॉनिटरिंग की है इसके लिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी मेरे टच में रहे, उन्होंने भी बार बार पूछा कि कैसा चल रहा है, उन्होंने बार बार मरीज़ों के बारे में भी पूछा। तो मुझे ये लगता है कि पूरी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चिंतित रहे कि लोगों का इलाज ठीक हो, और ये नया माइलस्टोन है, इसको हम अचीव कर रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़े दिन पहले हमने CTVS शुरू किया। एक कार्डियो डिपार्टमेंट में, हार्ट के डिपार्टमेंट में, यहाँ पे CTVS का जो विंग था वो बंद पड़ा था। यहाँ पे हार्ट लंग मशीन पड़ी थी, बहुत सालों से खरीद के पड़ी थी, और बहुत सालों से मशीनें आके पड़ी थी, सामान आके पड़ा था, पर CTVS चालू नहीं था। CTVS के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर वॉल रिप्लेसमेंट भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो आज CTVS विंग जो है हमने कुछ महीने पहले चालू किया, और आज निरंतर यहीं पे टांडा में वॉल रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, जो सिर्फ IGMC शिमला में हुआ करते थे, और लोगों को या तो IGMC जाना पड़ता था, या PGI या एम्स जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। टांडा कार्डियो में, मतलब दिल के रोग में भी एडवांस हो गया, CTVS चालू हो गया। जो मशीनें बंद पड़ी थी वो सब चालू हो गई, ताकि यहाँ पे लोगों का इलाज हो। अब मैं डॉक्टर मिलाप को, क्योंकि जब मैं कहीं आता हूँ मैं एक काम और इनके सुपुर्द करके जाता हूँ, तो इन्होंने हमेशा हर चीज़ अचीव भी किया, बड़े इन्होंने रात दिन, सारी टीम ने हमेशा मेहनत की है। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल के रूप में मेहनत की, जब ये फैकल्टी भी थे, HOD जब अपने डिपार्टमेंट के रहे, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत आगे लेके गए। मैं चाहता हूँ कि आप अब CABG, आप यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी भी चालू करें, और ओपन हार्ट सर्जरी जब यहाँ चालू होगी, तो क्योंकि आपके पास मशीनें पड़ी हैं, आपके पास टेक्नीशियंस हैं, आपके पास सारे लोग हैं, प्रोफेशनिस्ट भी है यहाँ पे, आपके प्रोफेशनिस्ट है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनिस्ट आपके पास है, कार्डियक सर्जन आपके पास है, आप CTVS विंग चला रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब CABG भी पूरी तरह से चालू कर देना चाहिए, ताकि यहीं पे हार्ट के यहाँ पे लोगों के ऑपरेशंस भी हों, और यहाँ पे लोगों को ऑपरेशंस ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। दोबारा से मैं नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को और पूरे कांगड़ा ज़िले को, कांगड़ा लोकसभा को और पूरे हिमाचल प्रदेश को मुबारकबाद देता हूं। आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और ख़ासकर नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज नगरोटा बगुआ में है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग आज पूरे प्रदेश का अलग अलग रोगों में यहीं पे इलाज कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को पुनः मैं मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी महंगा रहता है, ऐसे में जो लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आएंगे, क्या गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाने की कोशिश करेगी? लेकिन हमारे पास बहुत कम है, ट्रेन स्टाफ बहुत कम है, इस दिशा में किस तरह से काम होगा? और सब्सिडी क्या, जो दवाइयाँ भी बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें दी जाएगी क्या है? देखिए, ये ऑलरेडी जो दोनों तीनों चीज़ें आपने बोली है, तीनों हो रही हैं। एक आपने बोला कि गवर्नमेंट का जो स्टाफ है क्या वो बढ़ाया जाएगा, तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है स्टाफ बढ़ता रहता है। एक दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अ हॉस्पिटल में मान लिया अब जैसे MCH खुलना है, तो MCH के लिए उन्होंने स्टाफ के लिए लिखा हुआ है कि MCH खुलेगा, इनको स्टाफ चाहिए। इनका ट्रॉमा सेंटर खुलना है, स्टाफ चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी उन्होंने स्टाफ को दिया है। अब वहाँ से हेल्थ से क्लियर होकर फाइनेंस में गया है, हो गया क्लियरेंस हो गई, तो वो ये 3-4 दिन पहले फाइनेंस में गया था, और कल क्लियरेंस आ गई, कल आ गई। तो मैं डे टू डे मॉनिटरिंग करता हूँ, डे टू डे
कि आज कहाँ जा रहा है, आज फाइल कहाँ पहुँची, क्लियरेंस हुई कि नहीं हुई, डे टू डे। तो वो विकास पुरुष श्री GS बाली जी की आदत थी और उन्हीं से मैंने ली कि आपको डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है कि काम तभी हो पाता है, नहीं तो हो नहीं पाता। मशीन, आप हैरान होंगे, हार्ट लंग की मशीन, मतलब कार्डियक की मशीन, कार्डियक ओपन हार्ट सर्जरी की जो मशीन होती है, हार्ट लंग की मशीन जो है वो यहाँ पे कब से खरीद के रखी गई? कितने साल हो गए थे सर? हाउ मेनी ईयर्स? 2000 नहीं, इसके नहीं, इट वॉज समवेयर इन 2016-17। प्लीज इंक्वायर, जरा मेरे साथ फ़ोन करिए, कार्डियक के टीम को फ़ोन करिए। आए हुए हैं सर। कार्डियक की टीम सर, डॉक्टर विकास, डॉक्टर विकास साहब, कब से वो मशीन आई थी, एग्जैक्ट ईयर क्या था उसका, जरा पता करिए। हाँ, अच्छा, एक मशीन आई थी, उसके बाद जो बाकी परफ्यूशनिस्ट और बाकी लोग, हमने 1 साल पहले उसकी सीट भर के उसको चालू की। होता क्या है, आपकी मशीन आ गई, आपने सामान ले लिया, और सामान लेने के बाद उसको चालू करने के लिए यू नीड द राइट टेक्नीशियंस ऑल्सो। ओनली डॉक्टर डज नॉट परफॉर्म, you need perfusionist for this, you need technicians for this, you don't get them. So when you don't get them, you have a problem. So आपको उनको लाने के लिए मेरा क्या था, ये लगता बड़ा आसान है, ये हो रहा है कि भाई CTVS चालू हो गया। आप क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आइए जरा यहाँ आके बताइए प्लीज़, लोगों को पता चलेगा, प्रदेश के लोगों को, कि टांडा में कार्डियक के क्या प्रोसीजर हो रहे हैं 1 साल से। और ये मैं लेके आया, ये मैंने ध्यान लिया था कि कार्डियक के अंदर मुझे इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि लोग, मुझे पता है कितने पेशेंट, हज़ारों पेशेंट बाहर अपना ये वॉल रिप्लेसमेंट के लिए घूम रहे हैं, जलंधर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं। आते ही मैंने कहा मशीन पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, फटाफट यहाँ पे करो और इसको चालू करो। तो अब बताना क्या क्या कर रहे हैं डॉक्टर? सर हम जो हैं वेल्व की जो भी सर्जरीज हैं, सारी वेल्व की रिप्लेसमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं। इसके अलावा जो अडल्ट्स में दिल के छेद के ऑपरेशन हैं, जैसे AHD हो गया, तो हम उसके ऑपरेशन भी यहाँ पर सक्सेसफुल कर चुके हैं और ये ऑपरेशन फुली हम करवा रहे हैं। कितने ऑपरेशन हो चुके हैं सर? हमारे मोर देन 20 ऑपरेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास पोस्ट ऑप में एक पेशेंट पड़ा है ऑपरेटेड, और 2 जो हैं हमने अभी कमिंग ट्यूसडे और वेडनेसडे को रखे हुए हैं, वो दोनों वेल्व के केसेस हैं। और हमने यहाँ पर एक, मतलब दिल के छेद के और वेल्व, हार्ट के ऊपर जो वेल्व हैं हार्ट के, उनकी रिप्लेसमेंट। और सर इसमें मेनली अब हम रिसेंटली अब जो है, जैसे सर आपने कहा, हम CABG को शुरू करने के सर ऑलमोस्ट वर्ज पे हैं, तो हम जल्दी इसको हमारे को थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो हम कर लेंगे सर जल्दी शुरू। ये बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी ही है, लेकिन इसमें तरह की सर्जरीज फर्दर, ये ओपन हार्ट सर्जरी है, ये सारी ओपन हार्ट एडवांस जो बिल्कुल होती है, जिसमें आपको वो CABG जिसे जोड़ते हैं, काटते हैं, उसको जोड़ते हैं, वो हम विद इन 6 मंथ्स के आसपास शुरू होना चाहिए। देखिए, it just depends on their infection control, it just depends on their other parameters that they are seeing. I am very happy that transplant जो किडनी का होता है, उसके बाद आदमी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के प्रोन होता है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने ट्रांसप्लांट किया और लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ ये देख रहे हैं। बट उसके ऊपर निरंतर कंट्रोल हो, और आपकी फ्यूमिकेशन, आपकी सारी जो उसके, आपकी जो सारा स्टेरलाइजेशन और फ्यूमिकेशन वो टाइम टू टाइम हो, तो हम उसको और बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर इसका रिज़ल्ट आए, आप और पेशेंट्स को करें। बट रीनल ट्रांसप्लांट और कार्डियो के अंदर एडवांस ऑपरेशंस, मतलब पहले तो यहाँ पे सिर्फ स्टंट डलता था, यहाँ पे पेसमेकर डलता था, यहाँ पे TPI PPI डलता था, टेम्परेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर डलता था, पर आज यहाँ पे वॉल रिप्लेसमेंट हो रही है, दिल के छेद के इलाज हो रहे हैं, रीनल के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आप सबको इसकी ढेर सारी बताइए। बहुत बहुत टांडा में जो खर्चा है लगभग, जो इसके लिए एक पैकेज है, उस पैकेज में हो रहा है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेशेंट। 5 लाख या 6 लाख के आसपास सरकार देती है इसके लिए, और उससे नीचे ही हो गया हमारे पास। अभी हमें उसको दवाइयाँ चलेंगी पेशेंट को, तो एग्जैक्ट कितना है
वो तो दवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन वेल विद इन दैट लिमिट, जो लिमिट है सरकार ने रखी हुई उसकी लिमिट के अंदर सारा खर्चा होगा। पेशेंट के ऊपर पेशेंट का जो है, आप जो पूछ रहे थे, सॉरी मैं आपका जवाब दे रहा, पेशेंट का सरकार जो खर्चा देती है उसकी लिमिट के अंदर ही खर्चा होता है। बाद में दवाइयाँ वगैरह तभी तो फ़ायदा है। आप बाहर जाओगे आपको 10-12 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। आप अगर आप प्राइवेट में कराओगे तो 40-50 लाख का खर्चा आएगा। 25 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक का खर्चा आता है और डिफरेंट फ्री हो रहा है। और यहाँ पे वो इलाज फ्री हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर तो दवाइयों का जो खर्चा आएगा वही उसके जो दवाइयाँ यहाँ मिलेंगी वो तो फ्री हैं, पर जो पोस्ट केयर है उतने ही अंदर आपको दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। वो भी उसका भी एक पैकेज बनाया हुआ है, उसका बड़ा सिस्टम है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर्जरी का पैकेज, सर्जरी के पैकेज के बारे में बता दीजिए और पोस्ट केयर जो मेडिसिन लगने उसके बारे में सारा बताइए। अभी जो 2 पेशेंट्स का किया है वो दोनों, एक पेशेंट जिनके के अंडर हुआ और एक आयुष्मान के अंडर हुआ है, दोनों का फ्री हुआ है। जो अभी जो हॉस्पिटल को जो अपना खर्चा दवाइयाँ के पेशेंट्स के लिए स्पेंड करना है वो है 1,96,000 दोनों पेशेंट्स पर पेशेंट 1,96,000 की दवाइयाँ 1.86 लाख relatively technical we can say it's a free service. Free. हाँ मतलब is there that the patients have to give something post care? nothing. Nothing. नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो मेडिसिन है वो भी दोनों विनकेयर और आयुष्मान दोनों में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मेडिकेशन सारी फ्री पैकेजेस हैं अलग अलग, लेकिन पेशेंट्स को स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इलाज है, यू कैन राइट दैट इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इट इज़ ऑन हिमकेयर एंड आयुष्मान भारत स्कीम। हिमकेयर इज हिमाचल गवर्नमेंट स्कीम एंड आयुष्मान भारत, बोथ द स्कीम्स द पैकेजेस आर देयर। 2 पेशेंट जिनका इलाज हुआ है दोनों स्कीम्स में हुआ है, और 1 साल आगे की जो दवाइयाँ हैं वो भी सारी की सारी फ्री है। इसके अलावा स्टार है, दूसरी और बहुत सी कंपनीज है प्राइवेट में, ये तो इंश्योरेंस कंपनीज है। इंश्योरेंस वाले, उनको भी अगर ये टेक ओवर करें, उनसे ये पैसे ले लें। हाँ, टीपीए में बिल्कुल ये कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट के अंदर हिमकेयर और आयुष्मान भारत का इतना ज़्यादा लोड है कि इनके पास मतलब बहुत सारी जगह, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ टू थिंक कि हमको आपके इंश्योरेंस कंपनीज के साथ क्या डायरेक्ट टाइप होता है? सर ये नहीं इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास ऐसे है, हमारे पास जो पेशेंट वेटिंग में है जो हमारी टीम के पास हैं रीनल ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और 30 के आसपास पेशेंट वेटिंग में हमारे पास है जिनका सबका इलाज फ्री किया जाएगा। एक नहीं, मैं कुछ नहीं सर, उसका एक मैं आपको इलाज बताता हूँ। ये इलाज हमारे पास है, ये पॉलिटिकल आदमी के पास ज़्यादा इलाज होता है क्योंकि लोगों के बीच में रहता है। आप जो स्टार वाला है वो स्टार वाले कार्ड को छोड़ दे, हिमकेयर का कार्ड कल बना ले। आप समझिए, उसको तो कुछ भी नहीं करना, जाके कार्ड ही बनाना है। हिमकेयर का कार्ड इज़ फॉर एवरीवन। तो आप हिमकेयर का कार्ड बना लो कल ही और कल ही करा लो। मतलब वाई टू गो विद प्राइवेट इंश्योरेंस, वाई नॉट गवर्नमेंट कार्ड? गवर्नमेंट कार्ड लीजिए और इलाज करवा लीजिए। तो ये हमारे पास इसका वी हैव द रेमेडी इन क्यू इन टूर्नामेंट। Yes. All free surgeries have been done free. For 1 year medication is free, and remaining 30 are just in queue for the next. And I would like to again emphasize that our Chief Minister, the Health Secretary of Himachal Pradesh, the Chief Minister was bar in touch with me. Also the Health Secretary was in touch with the team here जब ये इलाज हो रहा था, just to monitor, because ये एक बहुत बड़ा milestone है। टांडा मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में एक नई चीज़ जुड़ी है, और चाहे CTVS हो, हार्ट का हो जो आपने तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया, चाहे ये रीनल हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हो, ये दोनों चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री साहब ने मेरे साथ ही कम से कम 5-6 बार बात की कि कैसा चल रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है कि पूरा प्रदेश देख रहा था जब यहाँ पे आपकी पूरी टीम, प्रिंसिपल साहब, MS साहब और सबसे अधिकतर जो इनकी रीनल टीम है और वो लोग काम कर रहे थे और बाकी उनकी हेल्प कर रहे थे। अवनिंदर जी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये लोग सारे के सारे लगे थे, पूरी टीम लगी थी टांडा की। इवन आई थिंक जितने बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी उतना ही रोल होता है। ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर धीरज का भी रोल शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ, ट्रांसप्लांट से पहले भी होता है। आई एग्री। और आपका रोल, हर फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट ट्रांसप्लांट के साथ जुड़ा है, एक डिपार्टमेंट नहीं है। ऑल द डॉक्टर्स आर
ट्रांसप्लांट जब होता है सभी डॉक्टर्स जुड़े हैं, सभी डिपार्टमेंट जुड़े हैं, सबका रोल है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें सक्सेस रेट कितना है? देखिए ये तो आपको सक्सेस रेट पता चलता है जब इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से आपको घर में भी बचना पड़ता है। अब जैसे ट्रांसप्लांट होता है, हमारे तो घर में हुआ, विकास पुरुष श्री GS बाली जी का ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद इन्फेक्शन हुई। तो ये इन्फेक्शन जो है वो ही वॉज एट होम, सो यू हैव टू बी 7-8 महीने जब तक आपका इम्यूनो सिस्टम दोबारा से वापस ले ना ले, हेल्थ आपकी इम्प्रूव ना हो जाए पूरी, तब तक आपको बचना पड़ेगा। किडनी फेलियर्स के मेन रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, बताइए। डायबिटीज़ सबसे कॉमन रीज़न है, उसका हाइपरटेंशन, रीनल स्टोन डिजीज़ और ओवरऑल रीनल स्टोन डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो OTC प्रोडक्ट्स वो ओवर काउंटर हम पेन किलर्स वगैरह खाते रहते हैं, वो सब रीजंस हैं CKD के। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो डायबिटीज़। Even having more of the medicines, very very important message, very important. सर टाटा मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़े बड़े भवन खड़े कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया उनको इनोवेट किए, वो आज दिन तक चालू नहीं हुए सर। जैसे कि आप हमारे GS वाली MCH है। फिर ये मेडिकल हॉस्पिटल बनाया है अपना। अब मैं MCH के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एक से शुरू करते हैं, सारों के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकास पुरुष श्री GS बाली जी के नाम पे इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने रखा। तो उसके बारे में पहले चर्चा करते कि वो इनॉग्रेशन हो चुकी है, तब भी शुरू क्यों नहीं हुआ। जब ये अस्पताल बनाया गया तो ये अस्पताल की ड्राइंग्स बनी और अस्पताल को खड़ा कर दिया गया, पर उसके अंदर कुछ टेक्निकल मेडिकली जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं बिल्डिंग में, वो कमी रह गई। वो चीज़ें जब MCH बनाने के लिए, जब ये फाइनल करने के लिए शिमला पहुँचे और उसको चालू करने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया कि आपको एक और स्टेयरकेस बनानी है, एक स्टेयरकेस और बनाओ। वो कहाँ से बनानी है? वन ऑफ द साइड्स ऑफ द हॉस्पिटल रैम्प बनाना है। अब वो बिल्डिंग बन के तैयार है, अब उन्होंने बोल दिया कि आप एक रैम्प और बना दो। तो ये जब हॉस्पिटल बनना होता है, ये लगता बड़ा छोटा है, पर इसमें जो मेडिकल लॉज हैं, आपके बिल्डिंग के लॉज हैं, उन सब के ऊपर बड़ा काम होता है। अब ये इनकी और गवर्नमेंट की और उसकी जो जिन्होंने ये कहा है डिपार्टमेंट ने, उनकी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कि बिल्डिंग खड़ी है, अब रैम्प कहाँ से एक और बनाएंगे, उसमें 6 महीने और लग जाएंगे। सर डोंट यू थिंक ये पहले बनना चाहिए बिल्डिंग? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। जब ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हुई है, एक्सियन PWD बैठे हैं, मैंने अभी इनसे इसके बारे में चर्चा भी करनी है, क्योंकि इन्होंने बनाई है बिल्डिंग। ये रैम्प जो है CPWD ने बनाई है, तो चलो मॉनिटर कर रहे हैं, CPWD वाले से भी बात करनी पड़ेगी आज। ये रैम्प जो है, ये जब टेक्निकली आप उसको गो हेड देते हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए लग के बनती हैं, तो कितने पैसे लगेंगे इस बिल्डिंग में? तकरीबन 40 करोड़ 44 करोड़। तो 40-50 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्ट्रक्चर में लग जाता है, मशीनें अलग आती है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर एक 100 बेड के अस्पताल में एटलीस्ट 100 करोड़ से ऊपर लगता है। 1 करोड़ रुपीज़ पर बेड मिनिमम खर्चा आता है फॉर अ हॉस्पिटल ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सो आपका जब 100 करोड़ रुपए के करीब लगे, तो आपका एक रैम्प जो बनाना है वो पहले हो जाना चाहिए। अब जब बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, तैयारी हो गई, तो अब वो बोल रहे हैं कि एक रैम्प और बनाओ। सो ये चीज़ें टेक्निकल हैं। ये टांडा मेडिकल कॉलेज जब बना है तो उसमें कितनी प्रॉब्लम आई है वो मैं जानता हूँ, कि हम तो छोटे से देख रहे थे, क्योंकि पिताजी उस टाइम बना रहे थे। तो एक रोज़ वो किस तरह से हर चीज़ को चेक करते थे, कभी छोटी से छोटी चीज़ को, तब जाके इतना विशाल इंस्टीट्यूट बना है। पर अब इसको चालू करना है। वैसे ही अलग अलग बिल्डिंगों के अलग अलग चीज़ें, कहीं पे आपको क्लियरेंस करानी है, अब इसके स्टाफ की भी क्लियरेंस हुई है, अभी आपको और भी सारी क्लियरेंस लेनी है। अब ट्रॉमा वाले को पहले किया हमने कि ट्रॉमा वाले को चालू करें, क्योंकि इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, एक साथ आप सब कुछ नहीं ऑन कर सकते। पर यह है कि आपने अब इसको ऑन करना है। प्राथमिकता ये है कि जो बिल्डिंगें हमारी बनी हैं उनको हम फटाफट चालू करें, प्राथमिकता है। जैसे मैंने आपको छोटा सा बताया कि CTVS जो था, मशीन पड़ी हुई थी और उसको चालू किया। सो नाउ माई प्रायोरिटी is to start the buildings, the infrastructure which we have done, the new ones which I have got a new nursing college for Tanda। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि टांडा मेडिकल कॉलेज को एक
गवर्नमेंट का बड़ा नर्सिंग कॉलेज मिला है, बड़ा माइलस्टोन है कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और इनको दी हैं, पर हमने बोला कि उनका काम आप चाहे थोड़ा लेट लगाओ, पहले इसको सबको चालू करो। सर इसी प्रकार ये मनोचिकित्सक भवन को भी 2-3 साल हो गए इसका इनोवेशन हुए, पर उसमें कुछ भी नहीं लगना, उसको लंबा चौड़ा 2-3 साल नहीं हुए, इसको 2 महीने हुए इनॉग्रेशन हुए, नहीं सर, मार्च महीने में इनॉग्रेशन हुआ। ये तो यदि भाजपा सरकार नहीं, ये शिलान्यास हुआ था। जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है वो हुआ है इन द मंथ ऑफ, कब हुआ है वालिया जिसका इनॉग्रेशन? पहले कर दिया था इसका, इस वाले का मेंटल हेल्थ वाले, यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ। हाँ, इसका हो गया हुआ पहले। इसमें क्या है मेंटल हेल्थ के अंदर, इसमें लगभग तैयार है। देखिए उसके बेसिकली मैं बताता हूँ आपको 2-3 चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ का मेरे को अभी पीछे इनकी आई हुई थी, बिल्कुल जो आपने रिव्यू दिया था उसके अंदर मेंटल हेल्थ वाला भी था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी I know. वालों का कोर्ट केस हो गया था लिटिगेशन का, लिफ्ट्स का टेंडर के ऊपर, और वो भी हुआ तो अब नाउ इट इज ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन। महीने में हम शिफ्ट कर लिटिगेशन में था और लिटिगेशन से अब जाके क्लियर हुआ हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। 15 दिन या 1 महीने के अंदर हमें PWD ने बोल दिया है, एक्शन साहब हमारे साथ व्हाट हैं। वाज द केस ऑफ लिटिगेशन? सर जिसका ना जी AC का केस हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्टर लिटिगेशन, ये देखिए ना, यही बड़ा होता है। बिल्डिंग बनाई जिस कंट्रैक्टर ने, कभी कंट्रैक्टर लिटिगेशन में चले जाता है, कभी गवर्नमेंट के साथ कोई देखा, अब कंट्रैक्टर लिटिगेशन में चला गया था, अब खत्म हो गया होगा। अब खत्म हो गया कंप्लीट नहीं, वो तो हो गया, पर अब नाउ द केस इज ओवर। व्हेन डिड द केस गॉट ओवर? ये 6 मंथ हो गए। 5-6 महीने हुए केस खत्म हुए। अभी थोड़ा सा काम है, 15 दिन और 1 महीने के अंदर हम इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। जी 1 महीने के अंदर। आप इसको टाइम बाउंड मत कीजिए, महीने भर के अंदर ये शिफ्ट करेंगे, जस्ट कीप इट लाइक दैट। गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है ना सर, अब जैसे इन्होंने बताया कि 6 महीने पहले केस वो हुआ, 2-3 महीने से ये हमारे इलेक्शन चल रहे थे, इनका अपना प्रोसेस चल रहा था गवर्नमेंट का। अब इनकी क्लियरेंस ऑफ पोस्ट होती है, पोस्टें लगनी, वहाँ बंदे ने आना, रिसेप्शनिस्ट से लेके आगे तक लोगों ने आना, नर्सिंग स्टाफ ने आना, वो टेक्निकल नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है। मेंटल हेल्थ के लिए भी टेक्निकल नर्सिंग स्टाफ चाहिए, आप किसी नर्स को ऐसे नहीं लगा सकते। सो देयर इज लॉट ऑफ हिच। नाउ द ओनली थिंग इज वी आर ऑन इट टू जस्ट स्टार्ट दिस। ट्रॉमा के लिए सर कल आपने 100 पोस्ट क्रिएट करी हाँ, और 9 उसमें अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, दिस इज, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रॉमा के लिए 100 नई पोस्टें क्रिएट हुई है कल ही हुई सर, अभी कल। yesterday new post 100 new post for trauma have been sanctioned for Tanda Medical College. Out of that 9 posts are assistant professors. न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन। आप ये बताइए, बता रहे हैं उसके अंदर न्यूरो सर्जन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बाकी आपको ये बताते हैं। बाकी नर्सिंग स्टाफ है उसमें सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, उसमें OTA चाहिए हमें, और उसके लिए हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, उसके लिए वार्ड बॉय चाहिए। तो सारी जो पोस्ट हैं टोटल मिला के ये 100 के आसपास है एग्जैक्टली। नए 100 लोग ये कल ही क्रिएट हुई। ये कल क्रिएट हुई और So, हमारे ये प्रोसेस है। मान लिया मंत्री जी कई दिनों से लगे थे इसके पीछे, तो हमें तो कल ही ऑर्डर मिले, तो आज हमने इनके पास पहुंचा देना उनको। धन्यवाद। ये फाइनेंस में गई थी पोस्ट, पहले गवर्नमेंट से क्लियर हुई, गवर्नमेंट से क्लियर होकर फाइनेंस में जाती है, फाइनेंस से क्लियर होती है क्योंकि सैलरी जानी है, ट्रेजरी से जानी है सैलरी, तो उसमें क्लियरेंस आती है। अब वो क्लियरेंस आ गई फाइनल, अब हम उस पर वो सारी पोस्टें भर के चालू करेंगे। दूसरा इसमें सर 3 एनेस्थीसिया की है। हाँ जी, आई एग्री सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट नाउ इट इज अल्टीमेटली स्टार्टिंग, उनका सपना साकार हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बहुत हमें आशीर्वाद दिया, और मतलब ये समझ लीजिए कि पिताजी के सपने को साकार करने के लिए, और सबसे बेहतर और सबसे पहले आप लोगों के सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि ये कांगड़ा जिले में और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में टांडा मेडिकल कॉलेज है। हम सबका सपना है कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर हो, क्योंकि यहाँ से जैसे दिक्कत होती है लोगों को इमीडिएटली PGI शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ये 100 लोग यहाँ बैठेंगे, ये 100 लोग जो स्टाफ है वो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए, जो ट्रॉमा केसेस जो हैं उनको करेंगे, जो बिल्कुल इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको लुक आफ्टर करेंगे। उसके लिए
हैं जी, वरदान साबित हो रहा है अपन। वरदान है सर, ये आप लोगों के आशीर्वाद से है। आप लोगों ने सबने इसमें मेहनत की है, और सबसे बड़ी मेहनत विकास पुरुष श्री GS बाली जी की रही, और सारे स्टाफ की, सारी फैकल्टी की, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा, तो अब अच्छा चल रहा है। समस्या लोगों की है कि ओपीडी स्लिप बनाने के लिए लोगों को घंटों खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए अगर काउंटर अलग से बना दिए जाए, स्टाफ भी अगर कमी पड़ती है, 2-4 अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जो बनाते हैं उनको उठा के करवा दिया जाए, तो लोगों की मेडिसिन में भी लंबी लाइन सर इसकी तो हमने किया है 15 अच्छा किशोर जी, जरा 2 मिनट रुका। अब एक काम करते हैं, आपने एक समस्या बताई है, यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर जेन्युइन कॉज, तो मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल साहब इस समस्या का समाधान अभी बताइए, आप इसको क्या हो सकता है। हाँ, किशोर जी ने हमें पहले भी बताया, और इसका शायद आपने न्यूज़ आइटम भी लगा था। तो हमने सारा ये करके देखा कि एक पेशेंट जब लाइन में लगता है तो कितना टाइम लगता है उसको। पहले 3 काउंटर के आसपास थे, 1 काउंटर हमने बढ़ा दिया है, और जिसको आउटसोर्स किया है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बोला कि इसको 5 काउंटर जल्दी से शुरू करें। लेकिन एक पेशेंट को 15 मिनट का टाइम लगता है वेटिंग में, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 3000 के आसपास पेशेंट पर डे आता है। मॉर्निंग में जब एकदम रश हो जाता है, क्योंकि हम इसको आधा घंटा पौना घंटा पहले शुरू करते हैं, तो 15 से 20 मिनट, तो जो भी पेशेंट आ रहा है 15 से 20 मिनट इसका जो वेटिंग पीरियड है, तो इतना तो आई थिंक इतने जेन्युइन। आप समझ रहे हैं सर, एक पेशेंट पर इसका समाधान मैं इनको थोड़ा सा बताता हूँ। आई विल ऑल्सो वांट प्रिंसिपल साहब टू वर्क ऑन दैट फार्मूला। एक चीज़ समझिए सर, टेक्निकल चीज़ है और पूरा प्रदेश हमको सुन रहा है इससे। 3000 नया पेशेंट, मतलब 3000 के साथ एक पेशेंट जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ 3-3, 4-4 लोग जरूर होते हैं परिवार के। तो एक साथ 10-15 हज़ार आदमी रोज टांडा मेडिकल कॉलेज में आता है, और उस 3000 पेशेंट को अगर 15 मिनट एक को लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके फाइल बनेगी, एंट्री होगी, उसको दिया जाएगा, उसका स्लिप बनेगा, लंबा समय लगता है। इसमें हमें और लोगों का स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा OPD ब्लॉक में आपको, बिकॉज जब इतना बड़ा इट इज़ लाइक मतलब मेडिकल कॉलेज को डिज़ाइन किया गया था सोच के 20 साल 25 साल 50 साल आगे, बट पॉपुलेशन भी बड़ी है, लोग भी बड़े हैं, तो अब हमको उसको लोगों को थोड़ा सा और OPD की जगह पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने 4 काउंटर किए हैं, इसको एक आधा काउंटर और लगा दें, 5 करवा दें, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जी सर। 1 काउंटर और बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएंगे तो कम से कम एक रेमेडी निकल आएगी, अगर आप इस पर वर्क करें। जी बिल्कुल सर। जीरो बिल के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसका भी ऐसा कुछ सिस्टम निकालना चाहिए ताकि जीरो बिल के लिए तो। हाँ, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं क्योंकि इसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, जैसे हिम केयर और आयुष्मान, उसमें सब में ये सारा डिटेल देना पड़ता है ज़ीरो बिल के लिए, तो उस पर भी हम ये काम कर रहे हैं कि वहाँ पे भी लाइन कम हो। और इसके लिए हमने एक और काम किया है कि जो कुछ लोग तो होते हैं ज़ीरो बिल, कुछ साथ में खड़े होते हैं जिनका बिल होता है, जो ना तो आयुष्मान में है और ना हिम केयर में है, तो इसके लिए हमने किया कि ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाए। मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, अब तो चलो हो गया, पर मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। आयुष्मान भारत और हिम केयर, ये आयुष्मान भारत जो ज़ीरो बिल आप बोलते हैं, इसकी ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ज़ीरो बिल कैसे देना, उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड लेना, आधार कार्ड देना, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आधार कार्ड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, हिज डिटेल्स हैव टू बी अपलोडेड। You can't start the treatment just like this. You have to upload the details. Upload it on the computer. तो आपको अपलोड करनी है, उसकी सारी डिटेल लेनी है, फिजिकली अपलोड करनी है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आप, अपलोड करने के लिए समय लगता है, क्योंकि एक बंदा आदमी जो है, जो बैठा है, जो टाइपराइटर लेके बैठा है, उसको अपलोड करना है। इसके लिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, आप काउंटर को बढ़ाओ और आप काम को उसको थोड़ा सा और लोगों को और बढ़ा के आप काम करो, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। बट एकदम बिकॉज पॉपुलेशन है, इतने लोग आते हैं और ज़ीरो बिल के अंदर आपको अपलोड करना पड़ता है, तो एकदम वी हैव टू बी ऑल्सो सीइंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट आपको एक आधा बंदा बढ़ा सकते हैं, काउंटर एक एक करके बढ़ा सकते हैं, बट 10-15 मिनट एक आदमी को लगते हैं। अभी सर आपकी सरकार ने एक और किया, आभा पे अगर शुरू हो गया, वार्ड में तो हो सकता है, नहीं वार्ड में नहीं, वार्ड में मुश्किल होगा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता,
क्योंकि उसका वहाँ पे कारण है, उसका कारण ये है, वार्ड में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कहीं पे भी रिसेप्शन में जब आदमी आएगा और वार्ड तक तभी पहुंचेगा जब उसके सारे के सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। मान लिया, उसके लिए मैं आपको आंसर करता हूँ, मान लिया आपके पास एक पेशेंट आया है जिसके आयुष्मान कार्ड के अंदर पैसे ही नहीं बचे हैं, या आपके पास एक पेशेंट आया है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुका है या उसका आयुष्मान कार्ड पहले यूज़ हो चुका है, तो आपको नीचे ही करना पड़ेगा। अगर आप वार्ड में ले जाओगे तो उसको वार्ड से वापस थोड़ा ना भेजोगे, ओपीडी में तो कर सकते हैं। ओपीडी में ही कर सकते हैं। ओपीडी मतलब जो रिसेप्शन होती है, ओपीडी की जो रिसेप्शन होती है उस पर कर सकते हैं। पर मैं अपने बाकी जगह इलाज करवाते थे या जो जिस जगह जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते थे सब ने कार्ड बनाया। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग हिम केयर का कार्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी। तो जब इतना सारा पैसे, इतने लोगों ने इलाज कराना शुरू किया तो एकदम पैसे भी बढ़े। तो सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज को पैसा देना है, सरकार ने आईजीएमसी को पैसा देना है, सरकार ने मंडी मेडिकल कॉलेज को पैसा, सबको पैसा देना है हर जगह, क्योंकि आपके लोग ही हज़ारों बढ़ गए। तो आपके पहले अगर टोटल 200 करोड़ लग रहा था तो अब आपका वो बढ़ के 4 गुना हो गया। सो इसलिए आपको फंड्स जो हैं उसको अवेलेबिलिटी करानी पड़ती है। ये सरकार हर जगह होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, ये हर मेरी बात सुनिए आप, ये आप जो आप कह रहे हैं इसको आप चेक कराइएगा, ये हर सरकार में है। ये बोलने के लिए बड़ा आसान है कि सरकार ने पैसे, सरकार ने किसके पैसे देने हैं? सरकार ने सरकार के पैसे देने। टांडा मेडिकल कॉलेज किसका है? सरकार का है। सरकार किसकी? गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के पैसे देने। तो ये आप इस चीज़ के लिए, ये हर सरकार में होता है। दिस इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को कोई कॉम्प्लिकेट कर देता है बोल के, पॉलिटिकल बातें कह के इस टाइम लोगों को ऐसे ही गुमराह करते हैं, बताते नहीं है। असलियत में ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का पार्ट है। बढ़ गया है, पैसा फाइनेंस से आना है, स्टेट का आना है, स्टेट को कैसे देना है, बाकी चीज़ों को भी देना है। आपदा आई, आपदा के लिए पैसा देश ने देना था और देश ने पैसा जो देना था वो नहीं दिया, तो यहाँ से आपको किया, अपने सोर्सेज से किया। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, चलिए बड़ी आपसे बातचीत हो रही है तो एक चीज़ और बताता हूँ सर। एक बड़ी अच्छी बात है, इसको आप भी गौर करिए। पीछे स्टाफ बैठा है, कोविड वाला स्टाफ, जरा हाथ खड़े करना। ये पीछे देखो, जरा हाथ खड़े कर दिए। ये देखो, देख लो पीछे, जरा कैमरा भी घुमा दीजिए। ये कोविड के टाइम पे रखे हुए स्टाफ है। ये स्टाफ रखा गया था जब पिछली सरकार थी। आई विल नॉट गो कि बीजेपी की थी कि कांग्रेस की थी, ये जिसकी भी सरकार थी, अब पिछली सरकार तो बीजेपी की थी, इन्होंने ये स्टाफ रखा क्योंकि कोविड उस टाइम पे आया। कोई बात नहीं, किसी भी सरकार में आ सकता है। ये स्टाफ को बोला गया क्या? कोरोना वॉरियर। क्या बोला गया? कोरोना वॉरियर। कोरोना वॉरियर को बोला गया, कार्ड दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, कहा गया आपने तो कमाल कर दिया, आपने हम सबकी ज़िंदगी बचा दी। इनके पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते थे, ये स्टाफ रख लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट को बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद इनका फेट क्या हुआ? ये लोग घर पे आ गए। हमारी सरकार आई, चाहे इनकी ग्रांट बंद हो गई, हमने इनको तब भी कंटिन्यू किया। हम इनको तकरीबन कितना समय रहे आप इस सरकार में? थोड़ा बोलना वहाँ से। 6 महीने। 6 महीने क्यों? आपको तो 2-3 महीने हुए गए हुए। तो आपको तो सरकार, आपको अभी यहाँ से निकले हुए कितना समय हुआ? एग्जैक्टली कितना हुआ आपको? 9 मंथ हुए। 9 मंथ हुए तो आप माइनस कर लीजिए कि 7-8 महीने सरकार ने अपने आप से करोड़ों रुपए की तनख्वाह दी और दिल्ली को हम लिखते रहे कि आपने ये बच्चों को कोरोना वॉरियर बोला, आपने इन बच्चों को, हमने कोविड के टाइम पे रखा, ये हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चों की नौकरी है, आप ग्रांट देते रहिए और हम इनको नौकरी पे रखना चाहते हैं। उन्हें, ये भी कोविड वाला स्टाफ है, ये देखो, ये जो आ रहा है, ये लड़की जो अपने बच्चों को लेके आ रही है, और ये स्टाफ को उन्होंने ग्रांट बंद कर दी और आज ये बच्चे जो है सड़क के ऊपर हैं। अब इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाए? अब ये बोलेंगे कि जी आपके टाइम पे गए। भैया हमारे टाइम पे तो इसलिए गए क्योंकि आपने पैसा देना बंद कर दिया, आपने पैसा देना बंद कर दिया और इनको जाना पड़ा। तो ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका ये आंसर है। सरकार के अंदर दिस इज अ प्रोसेस। समटाइम्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स यू द फंड and that fund comes to you and goes. Thank you.